ओ माय गॉड दोस्तों, ओ माय गॉड, वी हैव अ यूएफा चैम्पियंस लीग के फाइनलिस्ट आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, द बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ versus the best defense, the haram ball, the corner FC. Arsenal is more than that. So we start with कल का game. It was such a surprise to see PSG defend that way. ठीक है, we all know about PSG की attacking prowess, how Kucha combines with Fabian and 1-2 and he's through. But PSG का डिफेंस कल was so crazy. Luis Enrique, oh my god, the idea of total football by Luis Enrique was so crazy. He's such a good manager that every player of his can play each and every position. Like not literally, but you get the point कि लाइक नूनो मेंडेस उसके लिए विंग कवर कर सकता है, जायर एमरी उसके लिए राइट बैक मेक शिफ्ट राइट बैक बन सकता है. ऑन पेपर जायर एमरी वॉज द राइट बैक, बट जायर एमरी वॉज डिफेंडिंग ऑन द राइट बैक पोजिशंस ओनली तब ही जब बायर्न वर प्रेसिंग, like Bayern were in the half of PSG, and then also he had the help of Joao Neves in defending Luis Diaz. तो Zaire Emery was just a dummy right back for PSG कल के मैच में. He was providing एक extra number in the midfield. तुमने like most of the match में देखा होगा Marquinhos was the one marking Luis Diaz. तो and Marquinhos all in all did a very good job in marking Luis Diaz. On one hand, Luis Diaz was being marked by Marquinhos, and on one hand, Olise was being shut down by Nuno Mendes. Nuno Mendes भाई खा गया, ओलीसे को खा गया Nuno Mendes. कल ओलीसे को पता पड़ा होगा what it is like being डबल टीम ट्रिपल टीम, क्योंकि हमेशा जब भी ओलीसे was on one with Nuno Mendes held him for that time, and Fabian was there to help him. तो इट वॉज ऑलवेज अ 2v1 अगेंस्ट ओलीसे. और फर्स्ट हाफ में व्हेन नूनो मेंडेस वॉज एक्चुअली लाइक 1v1 अगेंस्ट ओलीसे, ही डिड अ प्रिटी गुड जॉब. वो तो स्टार्टिंग में ही टुक अ येलो कार्ड, तो उस वक्त एट दैट पॉइंट आई थॉट कि इट वुड बी हार्ड फॉर नूनो मेंडेस टू लाइक एक्चुअली कीप ओलीसे क्वाइट. बट नहीं, फाबियन रूइज केम टू हेल्प हिम आउट. पूरे मैच में फाबियन रूइज मेड अ 2v1 अगेंस्ट ओलीसे with Nuno Mendes, and here it is. Olise was shut down completely. And also, what a performance from William Pacho. PSG के डिफेंस की बैकबोन विलियम पाचो था. If PSG was so good defensively, was because of William Pacho. He committed zero fouls. Do you understand ये कितनी बड़ी चीज़ है against a front line of Kane, Diaz, Olise. Like लुइस पाचो ने इतने he also won 1v1s, है ना. we all know Kane का playing style. He drops, connects the plays, है ना. He does all of that, but William Pacho was so quick on that. वो हैरी केन को कनेक्ट नहीं करने दे रहा था. He pressed well, he defended well. Easily man of the match, William Pacho, very deserved. He was the best player on the pitch. This was how PSG was pressing in the 88th minute of the game. Look at that, 7 players in Bayern's half. वो एंड में भी बायर्न को इतना सफोकेट करके रख रहे थे, लाइक बायर्न अटैक ही नहीं कर पा रही थी. दे वर नॉट इवन एबल टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, जो उनका यूजुअल स्टाइल ऑफ फुटबॉल है. तो PSG ने उस पूरी चीज़ को नलीफाई कर. आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट नूनो मेंडेस वाली थिंग, क्योंकि नूनो मेंडेस वॉज ऑलरेडी ऑन अ येलो एंड टू मी इट लुक लाइक अ हैंडबॉल. एंड उस हैंडबॉल पे नूनो शुड हैव गॉट हिज सेकेंड येलो एंड रेड. ओके, ही शुड हैव बीन सेंट ऑफ, बट आई थिंक रेफरी टू प्रिजर्व द गेम, इट वॉज स्टिल वेरी अर्ली इन द गेम. यू कैन आर्ग्यू कि लाइक yes, he was unfair. Many 50-50s did not go Bayern के way.
and Bayern were like थोड़ा सा अनलकी एज वेल विद द रेफरी 50-50s भी PSG के लिए ही दे रहा था. नुनो मेंडेस वाली हैंडबॉल इज still like arguable कि if it even was a handball, but the match delivered PSG into the finals. And then we move to our haram ball derby. See, all jokes and banters aside, it was a pretty decent match. First leg जैसा नहीं था. First leg was still pretty open. We saw बहुत सारे अटैक्स इन द फर्स्ट लेग. सेकेंड लेग वॉज बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फ्रॉम आर्सनल अपने होम पे वर वेरी रॉक सॉलिड. मेरा तो डिएगो सिमियोनी से दिमाग ख़राब होता है. ओके, ही प्रायोरिटाइज चैम्पियंस लीग ओवर एवरीथिंग. हर प्लेयर रेस्ट कर दिया, हर प्लेयर ये कर दिया. एंड में डिड नॉट विन ब्रो, ही डिड नॉट विन. And people who shout him as one of the best managers of this generation, I do not agree with them. जब काम होता है, जब stakes are actually high, he just disappears. He is not that guy. He is not. हाँ, एटलेटिको को वो रेगुलर टॉप 4 लेके आता है. बट डू यू रियली बिलीव कि टॉप फोर फॉर अ क्लब शुड बी एक आइडियल टारगेट? आई डोंट नो. बट डिएगो सिमियोनी डिड ट्राई टू विन द मैच. उसने योरेंते यूजुअली राइट बैक खेलता है एंड ही पुट योरेंते इन द मिडफील्ड क्योंकि उसको पता था कि आर्सेनल के मिडफील्ड इज़ प्रिटी फिजिकल. तो टू काउंटर दैट मिडफील्ड ऑफ राइस, लुइस केली played a crazy game. He was very good on the ball, very good physically. He won अपने most of the physical duels and पोजीशन भी उसने बहुत कम ही लूज़ किया है. सो योरेंते को मिडफील्ड में डालना was a good move. बट अगर आप उनसे बॉल जीत ही नहीं पा रहे हो, आर्सेनल kept their possession very well. आर्सेनल were very good with the ball. उन्होंने बॉल बहुत अच्छे से रोटेट करी. हाँ, यू कैन आर्ग्यू कि फॉरवर्ड वर्टिकल आर्सेनल नहीं खेलती है. देयर वर नॉट मैनी चांसेस एंड जो गोल आया वो भी रीबाउंड. बट यू गेट द पॉइंट. अ गोल इज़ अ गोल, अ विन इज़ अ विन, एंड दे आर इन द चैम्पियंस लीग फाइनल. आई हैड आइज ऑन साका मैच में. साका वॉज वेरी क्वाइट इन द फर्स्ट हाफ. He lost position 5 times. उसकी dribbling was not up to the mark. He was not creating any chances. Passes भी like mostly back passes and trying to build up from the back. He was just trying that. मैंने इतना कुछ effective नहीं देखा साका के थ्रू. Took his chance and जो उसने गोल मारा, he redeemed himself. But if not for that goal, Saka was not good in the match. I will say this, Saka was not up to his mark, up to his standards in the match. And the reason Arsenal won was purely because कि उनका midfield control was very good, है ना. Rice was dictating the play so well, है ना. He lost possession 0 times, है ना. He was very good with his passes, very intentional with his passes, है ना. वी अंडरस्टैंड कि आर्सेनल ज़्यादा वर्टिकल नहीं खेलती. दे ट्राई टू रोटेट द बॉल, है ना, लुक फॉर क्लियर कट चांसेस, है ना, ट्राई टू गो फॉर सेट पीसेस. तो आर्सेनल डज ऑल दैट. राइस वॉज वेरी रॉक सॉलिड इन दैट मिडफील्ड. एंड नाउ वी कम ऑन टू द कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ द मैच. गैब्रियल का फाउल ऑन मार्क प्यूबिल शुड बी कॉल्ड. प्यूबिल वॉज जंपिंग इन द एयर और गैब्रियल का फुट वॉज इतना ऊपर, है ना. फुट एक डेजिग्नेटेड हाइट से ऊपर जाता है तो फाउल होता है ना. वो फाउल गैब्रियल का वॉज नॉट कॉल्ड. इंस्टेड इट वॉज गिवन अ फाउल ऑन गैब्रियल कि प्यूबिल का फाउल कॉल किया रेफरी ने. दैट वॉज वेरी बैड रेफरिंग. और उसके बाद वैसे भी ग्रीजमान पे भी फाउल था. तो प्रीवियस फाउल हुआ तो ग्रीजमान का फाउल काउंट ही नहीं हुआ. गैब्रियल का भी फाउल था और कालाफियोरे का भी फाउल था.
देन बात आती है सिम्योने वाले इंस्टेंस की. सी सिम्योने डिड अ वेरी गुड जॉब वो रन बना के, बट उसको लाइक हिज ओनली फॉल्ट वॉज कि ही ट्राई टू गो ऑन. वो अगर वहीं पे इफ़ ही फेल डाउन इंस्टेंटली आफ्टर गैब्रियल का वो इनिशियल पुल, इफ़ ही फेल डाउन आफ्टर दैट, तो वो डेफिनेटली एक फाउल कॉल होता और फिर पेनल्टी मिल जाती. बट ही डिड नॉट, ही ट्राई टू गो फॉर द प्ले, एंड फिर उसके बाद द होल प्ले टू द रेफरी इट सीम लाइक कि सिम्योने वॉज फेकिंग इट, एंड कोई VR इंटरवेंशन भी नहीं हुआ, तो इट वॉज अल्टीमेटली नो फॉल. सो द फाइनल्स ऑफ द चैम्पियंस लीग इज PSG वर्सेस आर्सेनल. ठीक है. एंड आई एम सीइंग बहुत सारे नरेटिव्स अबाउट हाउ PSG इज़ गोइंग टू पुट बेल्ट टू आर्सेनल की एस, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वन साइडेड. आर्सेनल को बिल्कुल ऐसी तैसी कर देगी आर्सेनल की, इंटर की जैसे करी थी PSG ने. सी आई विल से दिस, इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम. आर्सेनल एंड PSG का गेम वोंट बी माइन्यूटली क्लोज टू वॉट इंटर वर्सेस PSG का चैम्पियंस लीग फाइनल वॉज. आर्सेनल इज़ वेरी गुड डिफेंसिवली, है ना, दे डिफेंड वेल. PSG का अटैक इज़ वेरी क्रेजी, आई गेट इट, बट आर्सेनल का डिफेंस इज़ ऑल्सो वर्ल्ड क्लास, है ना. तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम, है ना. द गेम विल बी वेरी क्लोज, एंड आई रियली डोंट नो कि कौन जीतेगा. यू कैन आर्ग्यू दैट इट इज़ अ मैच ऑफ टोटल फुटबॉल वर्सेस नो फुटबॉल. मजाक कर रहा हूँ. ओके. तो एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस आउट कि इफ़ PSG डज back to back Champions League, if PSG does the back to back Champions League, are we including Luis Enrique in the best managers of all time wali conversation? Because he did it with Barca, the treble with Barca. He did it with PSG. He won 5 trophies in a season. The only, like, can you imagine that 24-25 वाले सीजन के बाद PSG, the only major match या फिर major final that PSG lost was the Club World Cup वाला final to Chelsea. वरना they have won every trophy that they have played in. I might be wrong, but Luis Enrique is a generational manager. उसने PSG को क्या से क्या बना दिया. He had the guts to kick Mbappe out, है ना. Like, हाँ, you can say कि Mbappe खुद ही wanted to join Real Madrid. You have to keep your egos aside for the team. The team comes above everything else. Champions League final is decided. PSG versus Arsenal in the end of May. I will be there, guys. I will be there. And do let me know अपनी प्रेडिक्शंस अबाउट दी UCL फाइनल, क्योंकि प्रीमियर लीग भी एंड तक जाने वाला है, एंड आर्सेनल विल हैव टू लाइक ट्राई वेरी हार्ड फॉर इट, है ना. PSG हैज़ वन देयर लीग ऑलरेडी. डू लेट मी नो कि आप लोग क्या सोचते हो अबाउट वॉट वेंट रॉन्ग इन दिस गेम, इफ़ बायर्न वॉज रॉब्ड और नॉट, इफ़ एटलेटिको वॉज रॉब्ड और नॉट. डू लेट मी नो. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ लेट मी नो अगर कुछ भी गलती होती है तो, एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक. बाय बाय.